नाउ द रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था? लेट अस क्विकली सी. सो इन 1914 जार निकोलस सेकंड, जार कौन थे? द किंग ऑफ रशिया. सो जार निकोलस सेकंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, and some parts of Poland, Ukraine, and Belarus. So all these parts were a part of Russia. Russia was comprised of all these countries. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan, right? All these were included in the Russian Empire in 1914, right? So अब देख रहे हो कि Russian Empire कितना बड़ा है और इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था जार के लिए. This was also one of the problems. Now during that time in Russia, religion was also one thing. So रिलीजन क्या बोलता था उस टाइम पे? किंग क्या बोलता था कि मुझे किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है रूल करने के लिए. आई विल बी रूलिंग द कंट्री, वॉट एवर आई विल से यू हैव टू अग्री टू दैट. और मेरे बाद में कौन किंग बनेगा? माई सन विल बी द नेक्स्ट किंग, राइट? सो रिलीजन वॉज ऑल्सो द प्रॉब्लम. उस टाइम पे रशिया में द रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी वॉज देयर. तभी लिबरल्स क्या बोल रहे थे? लिबरल्स क्या बोल रहे थे? वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, वी नीड टू हैव ऑल द रिलीजन्स, राइट? नॉट जस्ट दिस ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. So this was the system of religion in Russia. Now let us move on to economy and society. कि economy उस time पे किस पे based थी, कैसी थी और society किस तरीके की थी. So Russia was basically an agrarian state. So 85% of the economy कहाँ से आ रही थी? एग्रीकल्चर से. फ्रांस में देखते हैं 40% एग्रीकल्चर पे बेस्ड था इकोनॉमी और जर्मनी में 50% पे बेस्ड था. सो मेजर पोर्शन किसका हुआ? रशिया का. सो रशिया में बेसिकली क्या था? सबसे ज़्यादा बेस्ड किस पे थी इकोनॉमी? एग्रीकल्चर पे. ओके, नाउ धीरे धीरे व्हेन आई टोल्ड यू कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर शुरू हो चुका है, राइट? सो इंडस्ट्रीज लगने शुरू हो गए रशिया में. जार क्या सोच रहा है कि जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, फ्रांस में आ गया, राइट, बाकी कंट्रीज़ में आ गया, जर्मनी में आ गया, इटली में आ गया, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना चाहिए. अब अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा सो व्हाट विल हैपन? जार विल बी एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. प्रॉफिट कैसे होगा? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस तरीके से आएगा? देयर शुड बी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री. सो इंडस्ट्रीज हैव टू बी सेट अप इन द कंट्री. देन वील बी पुटिंग लेबर्स देयर, वील बी asking them to work for more and more working hours, right? They will be working more and thus they will be producing more output. More output means lot of products they have produced. Now more export and more profit. Okay, so industries were set up. So basically I told you the industries were set up in Petersburg, St. Petersburg and Moscow, right? So Petersburg and Moscow, with the advent of railway network, many other industries like coal, iron and steel industries also growing up rapidly. तो अब रशिया में भी क्या हुआ कि जार को लगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना चाहिए. सो ही हैड ऑल्सो वर्कड फॉर इट और सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया गया. नाउ कोल, आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ का काम बहुत ही तेज़ी से रशिया के अंदर क्या हो गया? इन फैक्ट्रीज़ के अंदर स्टार्ट हो गया. Now, mostly workers were divided in social groups based on their skill. Now, there were groups among the workers also. How? Let us see. Metal workers and workers. So, one was metal workers and the other one was normal workers. Now, how they differentiated between them? So, metal workers considered themselves as aristocrats. Aristocrats were who? The nobles, right? So, they considered themselves superior, because they were more skilled and trained. So metal workers, they were more skilled and trained, so they considered themselves as nobles, as aristocrats. So you know aristocrats, right? So we have done it thoroughly in the previous chapter. We have learnt about the nobles in the previous chapter thoroughly. So what was the condition of women? The women were also participating in the work. As it is, I told you, factories में कौन कौन काम कर रहे हैं? Men are working, women are working, kids are working, even old people were working in the factories as laborers, right? So although the participation rate of women was 31%, right? In 1914, the ratio of female worker
in a country was 31%, but they were paid almost 50% to 70% of men's wages. So for example, अगर किसी man को salary मिल रही है 100 rupees, तो उसके comparison में if a man is earning 100 rupees, right, as his salary, so women को कितनी salary मिल रही है उसके comparison में, अगर एक women का हम देखें तो उस women को या तो 50 रुपये मिल रहे हैं, maximum 75, इससे ज़्यादा किसी women को salary नहीं मिल रही. मतलब equality तो नहीं है society में. Despite division among them, they were united to strike work against employers about work conditions. So women को क्या मिल रहा है, men के comparison में they were earning less salary, right? So there was a division in the society. Women were considered as inferior to men. Of course सभी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं. So they also, whenever there were strikes, so women also actively participated in those strikes. Now most of the land around the countryside cultivated by peasants, all but large properties owned by nobility, the crown, the orthodox church. Now again the same problem is here, जैसे कि we have seen in the French Revolution. सबसे ज़्यादा लैंड किसके पास में है, अगर कंट्री में किसी के पास लैंड है तो सबसे ज़्यादा लैंड किसके पास में है, नोबल्स के पास में है, राइट, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास में है, किंग के पास में है, और चर्च के अंडर में भी है. वी हैव सीन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन 3 स्टेट्स वाला सिस्टम. यहाँ भी कुछ इस तरीके की चीज़ है कि जो ज़्यादातर लैंड है वो इन लोगों के हाथ में है. तो अब ज़्यादातर लैंड अगर इनके हाथ में होगी तो सफ़र कौन करेगा, जो वहाँ पर काम करने वाले हैं. नाउ नोबल्स वर लॉयल टूवर्ड्स द ज़ार एज दे गॉट देयर पावर एंड पोजिशन फ्रॉम हिम. अब नोबल्स कभी भी ज़ार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे. वाई? बिकॉज ज़ार हैज़ गिवन देम पावर एंड पोजिशन, राइट, और वट एवर दे आर अर्निंग दे आर एबल टू अर्न बिकॉज ऑफ जार ओनली, क्योंकि जार का उन पर कंट्रोल है, एंड दे आर फेथफुल टूवर्ड्स दी जार. Peasants wanted that land holding of nobles to be given to them, so frequently they refused to pay rent and even murdered them. Now peasants class जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स की जो लैंड है और जो चर्च की लैंड है उसके अंदर वो काम कर रहे हैं. अब ये नोबल्स उनसे काम करवा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि 80% हमें टैक्स दो, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका 80% हमें दो, और जो 20% बचा है खाली वो तुम रख सकते हो. उस 20% में से भी तुम्हें किसको टैक्स देना है, चर्च को देना है. तो जो लेबर है वहाँ पर काम कर रहा है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, राइट. तो इसके परेशानी मतलब इतने प्रॉब्लम्स में, दे वर ट्रबल्ड लाइक एनीथिंग, सो दे वर ऑल फेड अप. सो व्हाट दे डिड, they often refused to pay the rent, right, ki now will not give you anything, and they sometimes murdered these nobles also because they were all frustrated. Now Russian peasants, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, they pooled their land together periodically and their commune, जिसको क्या बोलते थे, मीर बोला जाता था, divided it according to the needs of their family. तो रशियन peasants ने क्या कर दिया कि एक बहुत बड़ी लैंड थी, ठीक है, 4-5 लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़े लैंड को क्या कर लिया, पूल कर लिया. When we go out, we also pool, no, sometimes in the restaurant, when we go with our friends, we also pool sometimes. Yes, similarly they were also pooling. So pooling system में क्या था कि जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिवाइड कर लो. हम क्या करते हैं जब हम पूल करते हैं कि हमने वी हैव ऑर्डर्ड, लेट्स से 1000 रुपीज़ का बिल आया, 10 फ्रेंड्स हैं तो सबने 100 रुपीज़ दे दिए, तो पूलिंग सिस्टम हो गया. सेम यही पूलिंग सिस्टम इस तरीके का है कि एक लैंड है बहुत बड़ा, उसको उन्होंने क्या कर लिया, पूल कर लिया. अब जितना भी प्रोड्यूस आया उसको उन्होंने इक्वली अपने बीच में डिवाइड कर लिया. उसको व्हाट दे यूज्ड टू से, मीर, राइट. This is a very unique arrangement which gave an idea to Russian socialists that peasants are natural socialists. अब जो रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट ग्रुप एक निकल करके आ रहा था, all those ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो निकल के आ रही थी, those who were supporting these laborers अपने आइडियाज़ से. फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ऐसा हुआ था ना कि लोग जब पढ़े लिखे नहीं थे तो कोई एक व्यक्ति किसी भी सैलून में या कोई पब्लिक प्लेस में बैठ के अखबार में या कोई मैगजीन उनको पढ़ के सबको सुना देता था, राइट. तो ये जो इंटेलिजेंट ग्रुप था ये यहाँ भी निकल करके आ रहा था, राइट. तो ये जो इंटेलिजेंट क्लास थी एक तरीके का किंग का ये ऑपोजिशन था, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स ये लोगों को इंस्पायर करेंगे कि हम भी क्या करेंगे, रिवोल्यूशन करेंगे. तो ये जो रशियन सोशलिस्ट थे, इंटेलिजेंट क्लास था, इन्होंने इन फार्मर्स को क्या बोला, नेचुरल सोशलिस्ट, क्योंकि भाई ये सोशलिज्म क्या बोलता है, डिवाइड द वेल्थ इक्वली अमंग एवरीवन. तो ये क्या कर रहे हैं, पूल करके काम कर रहे हैं और इक्वली सबके अंदर जो भी प्रोड्यूस आ रहा है उसको डिवाइड कर रहे हैं. सो दे वर टर्म्ड एज नेचुरल सोशलिस्ट्स. अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया,
सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर स्प्रेड हो रहा है और एक इंटेलिजेंट ग्रुप निकल कर सामने आ रहा है. उस इंटेलिजेंट ग्रुप के अंदर देयर आर मेनी लीडर्स, राइट. सो सबसे पहले विल बी सीइंग द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1898, बट इट वाज illegal. I told you कि during that time formation of parties was absolutely illegal because क्या हो रहा है, king was despotic. King is the executive, king is the legislature, king is the judiciary. Now king does not want to give rights to the people, because if people will have rights, किंग को क्या डर है कि जैसा रेवोल्यूशन फ्रांस में आया है वैसा रेवोल्यूशन अगर हमारी कंट्री में आ गया तो किंग की कोई लेजिटिमेसी नहीं बचेगी, राइट. किंग विल नॉट हैव एनी पावर्स. तो सबको अपना क्या करना है, पावर बचानी है. सो किंग हैज़ नॉट गिवन द राइट्स टू एनीबडी टू फॉर्म द पार्टीज, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कर ली, अपनी एक पार्टी बना ली. दे सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स. ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, खुद का एक न्यूज़पेपर बना लिया, राइट. अपने साथ बहुत सारे वर्कर्स रख लिए अपनी पार्टी में और स्ट्राइक्स इन्होंने ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर ली. तो ये जो इंटेलिजेंट ग्रुप है, जो सोशलिस्ट्स का ग्रुप है जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, 1898 के अंदर इन्होंने पार्टी बनाई है. ये क्या करेंगे, इनको पता है कि जार इज़ वीक, तो ये अपनी कैपेसिटी के अंदर अलग अलग जगह पे लोगों से क्या कराएंगे, स्ट्राइक्स कराएंगे, राइट. तभी तो जार के खिलाफ कुछ कर पाएंगे. इसी तरीके से धीरे धीरे रशिया में सोशलिज्म के आइडियाज स्प्रेड होंगे और धीरे धीरे जार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होंगे एंड ग्रेजुअली द मोनार्की फ्रॉम रशिया वुड बी अबॉलिश्ड.